Good morning, dear students. Hope you all are doing fine. Every day we have been making lectures for you. You all know that videos are being uploaded for our dear students. But how much you benefit from these lectures depends upon you, dear students. So, every time we request you that please open your mobile phones and go through these videos so that you get to know about your texts, about your topics, about the concepts which you have to study, especially for second year students. First year, when you were in first year, most of the times you were away from college, as because of corona you could not come to college and attend regular classes, and the only medium was this mode through e-lectures, e-content and PDFs. So dear students, we have to understand this, that all the students of our college, not only our college but of all colleges, these videos are meant for you, and if you do not benefit from these e-contents, these videos, then whatever work is done by us, that goes in vain, that goes waste. So please, again and again we request you to kindly go through these videos, and if you do not understand anything, you can even ask questions. These groups which we have made, these WhatsApp groups which we have made, you can ask questions through these WhatsApp groups, or you can even give us a call and we can answer your queries. But for that, you will have to become a little bit more attentive and more regular with your classes. In schools, online classes are going on, but this is not the online mode of teaching which we are using. We are only uploading our lectures, and we can only request you students to see these videos on YouTube channels. So in this you are more free. You can open the video anytime, but in online classes you have to stick to the time. If the teacher is taking a class from 10 o'clock, then you have to be there at 10. But in this mode, you can see the video anytime, whenever you are free. So please, dear students, please cooperate. In second year, we were talking about, rather we discussed these two topics recently. The last topic which we discussed was illiteracy, and before that we discussed unemployment. I have told you many times that these problems, they are all interrelated, they are all interconnected. Today we are going to discuss yet another problem which is very, you can say, important, relevant and interesting to study, of course, and that is crime. Students, we all know that in all societies there are certain rules and regulations which are made for its individuals or citizens, and they are expected to abide by those rules and regulations. But still there are people who do not stick to these rules and regulations every time, and they deviate from these rules. And once you deviate from these rules, you are known as a deviant, the one who is not going in the straight line, or the one who is not following the order of society.
which you are supposed to follow. So in that case, if you are not abiding by the rules and regulations of society, or you are deviating, or you are indulging in certain things which go against the norms of the society, then we can call that person not a normal person. He may be a criminal, he may be a deviant, or we can give some other name also. When we talk about crime, now crime is not only a concept which we study in sociology, but we also study in other subjects. Criminology, it has a legal aspect also, because we give the legal definition of crime, then we come to the sociological definition of crime. Both are very important. Before we study the sociological definition of crime, we talk about the legal definition of crime. क्राइम की कौन सी लीगल भाषा, कानूनी भाषा होती है। तो प्रत्येक समाज में हम देखते हैं कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या ठीक प्रकार से चलाने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सामाजिक मानदंड विकसित करते हैं, और इसमें से कुछ के विपरीत आचरण यदि कोई इंसान करता है, कुछ का उल्लंघन हम नैतिक मानते हैं, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा भी कठोर दंड दिया जाता है। अब अपराध की अवधारणा जो है राज्य के विकास के साथ साथ स्पष्ट होती गई। बहुत जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में और आज भी आदिम समाजों में, ग्रामीणों में ये विश्वास है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है, पाप है। यदि कोई व्यक्ति समाज की नज़र से बच भी जाए, फिर भी वह भगवान से अवश्य ही दंड पाएगा। तो ये धर्म और नैतिकता, इसका बहुत ही गहरा संबंध रहा है, और ये धार्मिक जो तरीका है लोगों को अपने समाज में रास्ते रास्ते पे चलने का, वो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसे कार्य समझा गया है जिसे नीतिशास्त्र अनैतिक मानते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमों का उल्लंघन होता है और उससे समाज को हानि होती है। तो 20वीं सदी में अपराध के प्रति तार्किक और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके अनुसार अपराध को समाज विरोधी कार्य माना गया। कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है, उसे 20वीं शताब्दी में माना गया कि वो अपराध तुल्य काम है। राज्य के शक्ति ग्रहण करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारों को राज्य के नियमों से संबद्ध किया गया, और ऐसे सारे काम जिनसे राज्य के नियमों का उल्लंघन होता है अपराध माने जाने लगे। इस प्रकार अपराध का संबंध समय समय पे धर्म से, नैतिकता से, समाज से, राज्य से जोड़ा जाता रहा है। अब यही कारण है कि अपराध की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार से की जाती रही है। अब सबसे पहले तो हम जैसे यहाँ पर बीइंग सोशियोलॉजिस्ट, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। मैंने आपको पहले बताया कि लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम भी है, वो भी हमको देखना है। तो ये चीज़ हो गई कि अपराध जो है, अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या जो है वो बहुत प्राचीन है। सामाजिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं उसको हम अपराध कहते हैं। अब समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को इंडल्ज करने के लिए अपराध में प्रेरित करती हैं। तो ये जो व्याख्या है वो अपराध के जो परिणाम है उस पर जोर नहीं देती है। तो इसलिए इसका संबंध किससे है? दंड के बजाय सुधार से ज़्यादा संबंध है इसका। जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के
परिणाम और दंड के घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अब यदि हम परिभाषाओं की तरफ जाते हैं तो क्लिनार्ड की परिभाषा एक बहुत ही सिंपल छोटी सी परिभाषा है कि अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। As we just talked about it, that it is a kind of deviant behavior. तो sociology of deviant behavior, इसके अंदर क्या हम मानते हैं कि अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मतलब अलग हटके कुछ काम हो रहा है, वो अपराध हो गया। दूसरी परिभाषा आ सकती है कि अपराध किसी निश्चित स्थान और समय पर संगठित समाज सम्मत मूल्यों के संग्रह का उल्लेख है। एक और परिभाषा की अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हैं। तो ये जो भी हम परिभाषाओं को देख रहे हैं उसमें अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है। जो इम्पोर्टेंट बात इन सब परिभाषाओं में हमने देखी वो क्या है कि अपराध को हमने समाज विरोधी व्यवहार के रूप में देखा है। किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए क्या क्या बातें मुख्य हो सकती हैं, तो सदरलैंड ने 3 बातों को ज़रूरी माना है। सदरलैंड की किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड की किताब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो सदरलैंड ने किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी मानी हैं। एक मूल्य, वैल्यू, जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। दूसरा, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो। एंड लास्टली तीसरा, एक उचित दंड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू हो। मतलब यदि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था हो। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो सदरलैंड ने बहुत आवश्यक माने हैं किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए। कल हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड डे स्टूडेंट्स।